Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss about the scientific methods या scientific approach in physics. आज हम जो डिस्कस करेंगे scientific methods के बारे में. Today the topic going to discuss is scientific methods. Scientific methods basically comprises 6 steps. There are basically namely 6 steps में 6 steps हैं. Number one is observation. Number second is hypothesis. Number third is theory. Number four is experiment. Number fifth is prediction, and number six is law. So these are the basically 6 steps in which for any scientific approach is concerned in physics. So science must follow these steps, 6 steps, in order to understand the matter energy, in order to understand the universe, in order to find out these different sort of scientific approaches, in order to explore the beauty of universe, they must follow these 6 steps. इसका मतलब है कि ये 6 steps जो है necessary for the scientists to follow these 6 steps in order to present the theory, in order to present the law. So these are the 6 steps. Now we shall discuss these steps one by one. अब हम discuss करने लगे हैं first step. Observation. Observation is basically the first step in scientific method in which scientists basically collect the different sort of data by observing the natural phenomena. अब scientists क्या करते हैं natural phenomena को observe करते हैं, basically facts को जो है observe करते हैं, and basically they use their senses by listening, smelling, feeling, and they get certain observation from the uh, nature. For example, if we talk about the different sort of theories, different sort of observation with regard to the nature of light. अब जब लाइट की हम बात करते हैं तो लाइट बेसिकली जो है सन से आपकी आ रही है, ठीक है. Sun is a source which produces the light, and different scientists basically observe the behavior of light, and they basically give a different idea about the light. First of all, they observe the light, that light is coming from the luminous object. Luminous objects are those objects which have a tendency to emit the light. So the first and most important approach in physics, that is the observation, or the first step of scientific method जो होगा बेटा वो observation होगा. तो observation का मतलब है कि to collect the information or to investigate about the certain natural phenomena, to get the data, that is called the observation. So observation basically scientists carefully जो है वो observation लेते हैं by observing the different sort of natural phenomena and facts को find करते हैं, and finally they move towards the next step. Next step जो है हमारे पास है वो है hypothesis. Hypothesis is the next step. On the basis of the observation, so scientists must launch a hypothesis. Hypothesis basically guess statements होती हैं, and on the observation effect on observation they produce a hypothesis. Just like one of the renowned scientists whose name is Isaac Newton. Isaac Newton made a hypothesis about the nature of light. So nature of light के बारे में जो hypothesis दिया. So according to his concept, and we observed the nature of light, and he presented a hypothesis. Basically, light is made up of small particles named as a these particles named as a corpuscles. So उन्होंने कहा कि light जो basically बनी हुई है small particles की. So that was his hypothesis, which was given by the Isaac Newton. So hypothesis में क्या होता है कि guess statements होती हैं, guess statements होती हैं, and on the basis of the idea of the observation, trial idea होता है ये, trial idea which is given by the on the basis of the observation, that is called the hypothesis, को हम कहते हैं hypothesis. So it is necessary for the scientists, they must launch a hypothesis, and on the basis of hypothesis we launch another law, we launch another step, that is called the theory. So this is all about the hypothesis. Now move towards the third step of a scientific method, that is called a theory. Now, theory basically on the basis of a hypothesis, idea, information, and observation, scientists must launch a theory. So in theory, basically depend upon the hypothesis as well as the observation. So in there are various sort of theories. Okay, बहुत सारी theories हैं. हम यहाँ पे nature of light को find out, nature of light के बारे में discuss कर रहे हैं. So one of the renowned scientists, Isaac Newton, again on the basis of his hypothesis, then he launched a theory with regard to the nature of light. He said that light is basically made of particles. Particles theory of light, and the particle corpuscular theory of light. And that he explained the different phenomena about the light. It's like a reflection of light, formation of a shadow. So this theory was accepted, and after that he also gave a different sort of ideas that light basically move faster in the denser medium as compared to the rare medium. But then after that we have a new theory. So यहाँ पे theories basically nature of light की बहुत सारी theories हैं, just like
we have a wave theory of light, and we have a particle theory of light, just like electromagnetic wave theory, quantum theory of light, and then we have a dual nature. So it is necessary for the scientists that they must launch a theory after observation and after a hypothesis. So necessary कि वो जो है theory जो present करें. So this is a theory which was launched by the Isaac Newton. So according to this theory, that light is basically made of the particles. So आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो particles हैं यहाँ पे reflect हो रहे हैं, bounce back हो रहे हैं. This is called the reflection. Okay, the incident particle when strike with the surface and then again it bounce back with the same angle. So angle of incident, angle of reflection यहाँ से हम find out कर सकते हैं. So यहाँ पे जो particles आ रहे हैं in the form of a wave, in the form of particles आ रहे हैं, जो light के ये particles यहाँ पे आ रहे हैं, इसी फॉर्म में पार्टिकल्स के नेचर में आ रहे हैं. इस तरीके से ये प्रोसेस जो कहलाएगा रिफ्रैक्शन प्रोसेस कहलाएगा. रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि मीडियम से जो है लाइट आपके पास होती है, थोड़ी रिफ्लेक्ट होती है, फिर जो है बाहर निकलती है. ठीक है जी. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन प्रोसेस. में लाइट जो है अपनी स्पीड इसकी जो है मीडियम से इससे पास होती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी न्यूटन्स पॉइंट ऑफ व्यू, द लाइट इज बेसिकली मेड ऑफ पार्टिकल्स. चलते हैं दूसरी थ्योरी के तरफ. नेक्स्ट थ्योरी वाज गिवन बाय द अनदर साइंटिस्ट हुज नेम वाज क्रिश्चियन हाइजन. सो न्यू कॉन्सेप्ट दिया था क्रिश्चियन हाइजन ने कि लाइट बेसिकली जो मेड ऑफ वेव्स. लाइट जो है बेसिकली पार्टिकल्स की बनी हुई नहीं है बल्कि वेव्स की बनी हुई है. So he given a new idea that light is made of just like a wave, just like a ripples of a pond on water. जैसे हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वहां से रिपल्स क्रिएट हो जाती हैं पानी में. ठीक है जी. तो इसी तरीके से जो है वेव्स का पैटर्न होता है. इसी तरीके से लेट्स सपोज कि हमारे पास इफ यू हैव स्ट्रिंग, हमारे पास कोई स्ट्रिंग है या रोप है, वन एंड हम इसको जो है किसी फिक्स कर दें, दूसरा एंड हमारे हाथ में हो, हम जैसे इसको अप एंड डाउन जर्क देंगे तो ये स्नेक लाइक वेव्स जो है क्रिएट हो जाएंगी इसी पैटर्न में. तो दिस इज इन दिस फॉर्मेट क्रिश्चियन हाइजन का मानना था कि बेसिकली लाइट जो है इस पैटर्न में आ रही है, जो है उस वेव्स की जो है फॉर्म में आ रही है. देन ही लॉन्च इस थ्योरी दैट इज कॉल्ड क्रिश्चियन हाइजन वेव थ्योरी जो लॉन्च हुई थी. Again, he said light is moving also in a straight form, a straight pattern, and similarly also give the concept of formation of shadow, reflection और other properties जो light के बारे में उन्होंने जो है concept दिए. फॉर एग्जाम्पल ये इसकी पिक्चर है, यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं कि लाइट जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव आ रही है. तो वेव की फॉर्म में क्या है, रिफ्लेक्ट हो रही है. इसी तरीके से लाइट जो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है. दिस प्रोसेस का रिफ्रैक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड reflection. Again, he explained the reflection and reflection process, formation of shadow, light form in straight, light move in a straight pattern. ये भी हमें concept जो है उन्होंने बताया था. Similarly, after that we have a new theory, and then new theory was suggested by the one of the scientists. With regard to that theory, Maxwell ने जो है concept दिया था कि light basically electromagnetic wave है. And he said that light is moving in the form of electromagnetic wave. Means one pulse is electrical, another pulse is magnetic pulse. यहाँ पे आप देख रहे हैं figure. Now there is a figure electromagnetic propagation. It means electromagnetic waves motion. So upper part of wave जो है यहाँ पे electric field है, and lower part ये आप red में देख रहे हैं, this is called a magnetic field. Both electric field and magnetic field आपस में क्या है, perpendicular है. Both are perpendicular to each other. Okay. So इसी तरीके से ये भी जो एक पैटर्न है आपका वेव का. This is the velocity of a wave, propagation of wave. Wave जो है इस डायरेक्शन में मूव हो रही है. अब अपर पार्ट ऑफ वेव कहलाता है crest, lower part of wave कहलाता है trough. Crest and ट्रफ में जो है वेव जो है मूव हो रही है, और डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड क्रेस्ट या ट्रफ इन ट्रफ, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. उसकी वेवलेंथ होती है. सिमिलरली वेव की एनर्जी जो होती है तो वो आपकी पर्टिकुलर एनर्जी होती है वेव की, डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. ठीक है जी. एंड सिमिलरली वेव की जो स्पीड जो डिक्रीज होती है वो डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, लो है, तो वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द Maxwell with regard to the nature of light. He said the light is basically is electromagnetic wave. But the next theory की तरफ, quantum theory of light basically was given by the Max Planck in 1905. So he was observing the different sort of radiations which is emit from the hot body, and so finally he said that basically energy emit in the form of a discrete bundles of packets of energy. डिस्क्रीट बंडल्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी फॉर्मेट में निकलते हैं. उसने उनका नाम रखा क्वांटा. ओके जी. क्वांटा की जो है फॉर्म में निकलते हैं. क्वांटा इज बेसिकली बंडल्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी. एंड फाइनली लेटर ऑन द आइंस्टाइन जो है उन्होंने उनका नाम चेंज कर लिया. आइंस्टाइन ने बंडल्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी का नाम रखा फोटोन. आज जो हम लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं तो लाइट के जो है बेसिकली हम कहते हैं फोटोन की बनी हुई है. फोटोन जो है लाइट बेसिकली मेड ऑफ फोटोन्स. सो फोटोन्स को जो है कॉन्सेप्ट वो दिया था
एंड आफ्टर दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड अपॉन इस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है उसकी होगी। एंड सिमिलरली प्लैंक्स ने जो है वो फार्मूला भी दिया था एनर्जी का, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। एंड आल्सो गिव अ कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट जो है एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। सो ई इज इक्वल टू, एनर्जी का फार्मूला होगा ई इज इक्वल टू एच म्यू, एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी। सो दैट वाज अ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी का मतलब है कि लाइट बेसिकली स्मॉल डिस्क्रीट बंडल्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं क्वांटा, या इसको फोटोन हम कहते हैं, ठीक है जी। इसकी एनर्जी है, जब ये फोटोन किसी भी जो है मैटर पार्टिकल्स या मटेरियल से स्ट्राइक करेगा तो क्या करेगा, नंबर वन कि अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, नंबर सेकंड अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, ठीक है जी। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन विद द मैटर पार्टिकल्स। नाउ नेक्स्ट इज दी आफ्टर दैट जो है न्यू थ्योरी जो लॉन्च हुई थी वो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट थी। लाइट समटाइम बिहेव जस्ट लाइक अ पार्टिकल, समटाइम बिहेव जस्ट लाइक अ वेव। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे, क्रिश्चियन हाइजेन की जो वेव थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया था one of the scientists whose name was Thomas Young. Thomas Young performed an experiment, Young double slit experiment. Through the Young double slit experiment, he observed the interference pattern. Interference pattern जो होता है wave में होता है. He observed the constructive interference and destructive interference, and he basically on the screen जब light को narrow slit में से pass कराया गया तो यहाँ पे constructive interference हुई, destructive interference हुई। स्क्रीन पे जो है बेसिकली ऑब्जर्व दी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बैंड्स ऑफ कलर और स्पॉट, डार्क स्पॉट एंड ब्राइट स्पॉट। डार्क स्पॉट बेसिकली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मतलब है कि क्रस्ट जो है वो ट्रफ पे फॉल हो तो वहां पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल हो तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, उसका एम्पलीट्यूड वेव का बढ़ जाएगा। एंड फाइनली ऑन द स्क्रीन हम जो ऑब्जर्व करेंगे जो है वो ब्राइट स्पॉट। So experimentally proved हो गई थी wave theory of light which was performed by the one of the renowned experiment performed by Thomas Young, double slit experiment जो है prove हो गई। When the question was raised and finally the question raised with a particle theory पे, क्योंकि there was no any evidence of particle theory, particle theory का कोई evidence नहीं था, ठीक है जी। जब हम बात करते हैं experiments की, तो scientists basically perform a various sort of experiment in order to prove, in order to check out the theory, theory को क्या करते हैं वो check out करते हैं और उसको जो है फाइनली इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट दे बेसिकली चेक द थ्योरी एंड प्रेजेंट द थ्योरी। थ्योरी अगर आपकी जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाती है देन साइंटिस्ट मस्ट मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप प्रेडिक्शन एंड देन कन्वर्ट द थ्योरी इनटू द लॉ। लॉ में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली जो आपकी पार्टिकल थ्योरी थी, जो पार्टिकल थ्योरी का कोई प्रूव नहीं था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं था, लेकिन फाइनली जो मॉडर्न फिजिक्स में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वन ऑफ द इफेक्ट दैट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस बाय मींस ऑफ फोटोन। फोटोन जो लाइट का पार्टिकल है आके किसी मेटेलिक सरफेस से टकराता है, वहां पे उस मेटेलिक सरफेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या करता है जो है फोटोन अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है उसी जो है मेटेलिक जो है सरफेस में, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है नॉकड आउट होता है, किक आउट होता है। इसको हम कहते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मीन्स फोटोन, इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कि चार्जेस पे आके वो जो है इंटरेक्शन करता है इलेक्ट्रॉन पे और फिर क्या होता है वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकड आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट की जो नेचर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो यहाँ पे जो लाइट की नेचर है वो क्या है, पार्टिकल नेचर है, ठीक है जी। तो पार्टिकल थ्योरी जो है आपकी कॉस्मिक थ्योरी ऑफ न्यूटन्स कॉस्मिक थ्योरी ऑफ लाइट वो प्रूव हो जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे और भी मॉडर्न फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, इसी तरीके से कॉम्पटन इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है, इनिलेशन ऑफ मैटर है। इन सब में जो बेसिकली लाइट जो शो कर रही है वो आपकी पार्टिकल थ्योरी को जो है वो जो वैलिड करार दे रही है, मतलब पार्टिकल थ्योरी को प्रूव कर रही है, ठीक है। तो पार्टिकल थ्योरी भी प्रूव हुई थी। अब साइंटिस्ट जो है फाइनली उन्होंने जो है वो ड्यूअल नेचर दिया कि लाइट समटाइम बिहेव जस्ट लाइक अ पार्टिकल, समटाइम बिहेव जस्ट लाइक अ वेव। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में जो परफॉर्म किए गए थे उन एक्सपेरिमेंट्स में लाइट जो है वहाँ पे बिहेव कर रही है पार्टिकल। कुछ एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने देखा कि लाइट जो है वहाँ पे जो है जो जो परफॉर्म कर रही है या जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको, जो रिजल्ट्स उनको मिल रहे थे वो जो है पार्टिकल्स के मिले। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में उनको रिजल्ट्स जो मिल रहे थे वो वेव में मिल रहे थे। जिस लाइक ये आप देख रहे हैं कि इंटरफेरेंस हो रही है, यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, लाइट आपकी यहाँ पे नैरो स्लिट, स्लिट्स मींस नैरो ओपनिंग्स, स्लिट्स का मतलब है नैरो ओपनिंग्स। यहाँ जो लाइट इन स्लिट्स में से पास हो रही है तो यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, इंटरफेयर हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि
यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, रिस्ट्रिक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। यहाँ पे आपको ब्राइट स्पॉट मिल रहे हैं या ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं या डार्क फ्रिंजेस मिल रही है। सो दिस इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट। तो वेव थ्योरी जो प्रूव हो गई, लेकिन यहाँ पार्टिकल थ्योरी भी जो है मॉडर्न फिजिक्स में, ये तो क्लासिक फिजिक्स में प्रूव हुई थी आपकी जो है 1801 में थॉमस यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो वेव थ्योरी प्रूव हो गई। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स 19th सेंचुरी के बाद जो है Albert Einstein ने photoelectric effect पे काम किया और finally just gave idea that ejection of electron from metallic surface by means of photon। तो वहां पे फोटोन जो था एज अ पार्टिकल जो है मूव कर रहा था, पार्टिकल की जो है वो नेचर शो कर रहा था। ठीक है जी। इस तरीके से कॉम्पटन इफेक्ट जो है उससे भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है नेचर ऑफ लाइट क्या है, पार्टिकल है। इसी तरीके से पेयर प्रोडक्शन में भी जो है नेचर ऑफ लाइट क्या है, पार्टिकल है। एंड सिमिलरली इनिलेशन ऑफ मैटर जो है उसमें भी जो है लाइट जो है बिहेवियर अपना जो करेक्टरिस्टिक जो शो कर रही है पार्टिकल पार्टिकल कर रही है। सो पार्टिकल थ्योरी भी प्रूव हो जाती है, न्यूटन कॉस्मिक थ्योरी ऑफ लाइट भी प्रूव हो गई, एंड फाइनली क्रिश्चियन हाइजन वेव थ्योरी भी प्रूव हो गई। अब जो है साइंटिस्ट ने उनका नाम रखा कि लाइट बेसिकली, लाइट की जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर है। लाइट समटाइम बिहेव जस्ट लाइक अ पार्टिकल, समटाइम बिहेव जस्ट लाइक अ वेव। तो आज हम जो लाइट को पढ़ रहे हैं वो ड्यूअल नेचर पढ़ते हैं, लेकिन फंडामेंटल थ्योरीज हैं। सो ये बेसिकली द थर्ड जो आपका स्टेप है, नंबर थर्ड फॉर साइंटिफिक अप्रोच फिजिक्स इज कंसर्न, दैट इज कॉल्ड द थ्योरी। So we discussed various sort of theory, and after that, the experiment necessary for the scientists to find the theory को find out करने के लिए जो experiment perform किया जाता है, in order to find out those points which they basically observe, or in the hypothesis they basically point out those points। उनको check करने के लिए जो है scientists must perform the experiments। Then next step is prediction। prediction में क्या होता है, साइंटिस्ट बेसिकली गिव अ सर्टेन स्टेटमेंट, इफ एंड देन स्टेटमेंट होती है। ठीक है। prediction में जो है scientists must predict about the nature of light, and he give the that certain things जो है इसमें हो सकती हैं। if जो है लाइट पे जो है मजीद और कोई काम करना साइंटिस्ट चाहे तो ये और भी इसमें जो है वो प्रिडिक्शन हो सकती है, और भी इनमें जो है काम हो सकता है, और लाइट के जो है और भी बिहेवियर्स और भी जो प्रॉपर्टीज पे काम हो जाता है। It means that certain work is left by the scientists, and they can predict that there are certain things which we जो है find out। So ये basically scientists जो है launch certain questions, if and then statement जो है उसमें होती है। So that is called the prediction। In order to check out the theory, in order to जो थ्योरी को जो है वो वैलिड करने के लिए जो है बेसिकली प्रेडिक्शन देनी पड़ती है। ठीक है जी। एंड सिमिलरली पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज कॉल्ड लॉ। So law is basically the permanent statement of a scientist। law जो है permanent statement of a scientist है। So after that law or principle इसको कहते हैं। And finally it is necessary that after the experiment, so scientists must convert his theory into the law, and finally law is a permanent statement of the scientist। ठीक है जी। तो थ्योरी आपकी जो है वो चेक हो जाती है, और फाइनली एक्सपेरिमेंट की जो करेक्ट हो जाती है, देन नेसेसरी फॉर द साइंटिस्ट that it convert into the law or principle। तो वेरियस लॉज हैं यहाँ पे, जैसे कि आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है जी। इसी तरीके से वी हैव अ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये भी एक लॉ है। एम्पेयर्स लॉ है सिमिलरली, and similarly we have a Pascal law, Boyle's law, Charles law। These are the certain laws। Okay जी। So law is a permanent statement। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस क्या है थ्योरी और लॉ में, मेन डिफरेंस क्या है थ्योरी लॉ में, सिर्फ ये डिफरेंस है कि लॉ जो है परमानेंट स्टेटमेंट है साइंटिस्ट की, जो है हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, बट थ्योरीज को हम चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। थ्योरीज आपकी जो है रिजेक्ट हो सकती हैं। ठीक है जी। जैसे कि रदरफोर्ड की जो थ्योरी हम एटम की बात करें, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई। इसी तरीके से नील बोहर की जो एटॉमिक थ्योरी है वो जो है करेक्ट है। तो थ्योरीज आपकी जो है वो समटाइम जो है वो रिजेक्ट भी हो जाती हैं, गलत भी साबित होती है, बट लॉ जो है, लॉ रिमेन परमानेंट। लॉ जो है परमानेंट होता है, वो कभी भी जो है वो फेल नहीं हो सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडे टॉपिक। आज जो हमने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है scientific method, in which we discuss the 6 steps of basic step. Number one is we discuss the observation, after that we discuss the hypothesis, after that we discuss the theory, and then we discuss the experiment, and then we discuss the prediction, and after that we discuss the law। I hope कि आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।